पर इस्तेमाल करना मेरे को दबा प्रभु पिता ये बीज जो बीजे जावे मेरे को दबा प्रभु जी पिता ये सारे जीवन में पिता 100 गुना फल लेके और बड़े हालेलुया 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 जिन्हें जाके बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। और वचन ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਾਜੀ ਬਾਈਬਲ ਦਿਓ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਹਿੰਦੀ हिंदी वाली बाइबल है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पढ़ ले ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਉਹ ਕਮਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕਮਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦਿਓ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ वचन तो बिना जिंदगी अधूरी है वचन तो बिना जिंदगी की अधूरी है वचन होवेगा तुसी शैतान का मुकाबला कर सकते जी वचन होवेगा फिर तुहाडे अंदरों निकलेगा वो बीमारी जाएगी हालेलुया वचन को सीखना वचन को मनना वचन दे मुताबिक चलना बहुत जरूरी है जेडे लोग वचन को सुनते हैं मनते नहीं कि ਉਹਦਾ कोई लाभ है जिन्नी देर वचन उत्ते असी अमल नहीं करते वचन दे मुताबिक नहीं चलते वचन कदे भी साडे जीवन दे विच काम नहीं करेगा वचन कदों काम करता वा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਭਲਾ परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को साडे लई दे दिता उन्हें साडे लई जान दी है उन्हें कुर्बानी दी है उन्हें साडे लई कोड़े खाते ने ओदे हत्थां पैरां उत्ते किल ठोके गए ने ओदी दाढ़ी नोची गई है ओदे सिर ते कंडे दा ताज पाया गया वा क्यों ये लोग किते नाश ना हो परमेश्वर ने इंसान दे नाल वध प्यार कीता क्यों उन्होंने अपने स्वरूप उत्ते ते अपने वर्गा बनाया कई कह देंगे भी साडी किस्मत ही की है माड़ी है साडी किस्मत की है कहते हैं ना लोग प्रभु ने ते जदों पैदा किया सी उन्हें ते तेरी नाम किस्मत ही लिखी है अपने को कही जाते हालेलुया धन्यवाद प्रभु का प्रभु के दास साडे विच आए प्रभु इन्हां नूं आशीष और बरकत देवे हालेलुया प्रभु कदे भी किसी की किस्मत नहीं लिखता ये प्रभु साडा राजियां दा राजा है तो सानू क्यों कंगाल होना देगा कहता तुसी भी की जे राजे जे हालेलुया हालेलुया
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜੋ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਠਹਿਰਾਏ ਆ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ? ਔਰ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਸਟਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਹੋਨਾ 12 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੋਨਾ 12 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਝ। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं तुझको सच सच कहता हूँ, सच सच बोलता हूँ, जितनी देर गंदम का दाना मरे ना फल नहीं दे सकता, जितनी देर कणक का दाना मरे ना फल, गंदम का दाना जितनी देर जमीन में जाए ना वो मरता नहीं है, कभी फल लेके नहीं आएगा। कणक का दाना धरती दे विच इक्को ही बीजते हैं यार, एक ही बीजते हैं, एक नूं किन्ने लगते हैं? गंदम का दाना एक ही बीजते हैं, तो छिट्टे कितने लगते थे? लगते हैं ना। वो पहले मरता है, बाद में फल लेके आता है, पहले मरेगा तो फल लेके आएगा। इसी तरह हम भी हैं, जितनी देर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय से ग्रहण नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं लेते, प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करता। प्रभु हमसे क्या चाहता है? फल चाहता है। आप फल लेके हो, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? फल चाहता है। कौन सा फल दे सकते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर को कौन सा फल हम दे सकते हैं?
परमेश्वर के राज से काम करना परमेश्वर के राज के लिए शुभ समाचार। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? फल चाहता है। प्रभु के वचन को मानना, प्रभु के वचन के मुताबिक चलना, प्रभु का वचन दूसरे लोगों को बताना, प्रभु की हजूरी की चिंता करनी, प्रभु की हजूरी की जो लोग चिंता करते हैं, फिर परमेश्वर उनकी भी चिंता करता है, उनकी चिंता करता है, उनके परिवार की चिंता करता है। वचन में लिखा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा, ना ही तुझे छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बोलता भी है, वो हमारी आवाज को सुनता भी है, हमें उत्तर भी। सदरक मिस्कत अब्दनो को राजा ने उसे बलती हुई भट्टी में डाल दिया। वो राजा को क्या बोले? ए राजा, हम इस मूर्त के आगे मत्था नहीं दे देंगे, इस मूर्त के आगे झुकेंगे नहीं। हम उस परमेश्वर की, उस अकाल पुरख की भक्ति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, जो हमें बचाने की शक्ति रखता है, पावर रखता है। हालेलुया। जब सदरक मिस्क और अब्दनगो को बालती हुई भट्टी में डाल दिया, उसका जो तापमान है ज्यादा कर दिया, उनका एक भी जो बाल है नहीं जला। वो राजा क्या देख रहा है? भट्टी में कितने सूटे, कितने डाल दिए भट्टी में? तो कितने नजर आ रहे हैं? चार। वो बालती हुई भट्टी में 3 डाल दिए और 4 नजर आ रहे हैं। चौथा कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो अपने लोगों का नाश नहीं चाहता। जो लोग उसे प्रेम करते हैं, वो अपने लोगों को बचाने की ताकत रखता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, मैं तुमसे फल चाहता हूं। तुम वचन सुनते हो, वचन को मानते नहीं, वचन के मुताबिक चलते नहीं। कितनी देर हो गई हमें वचन को सुनते सुनते, कितनी देर हो गई हमें चर्च में जा रहे हैं, जा रहे आ रहे, पर वचन का मालूम ही नहीं है। जो इंसान वचन को जानता है, उसे वचन का ज्ञान है। जितनी देर हो दूसरे इंसान के साथ वचन को बांटता नहीं है, वो वचन उसके जीवन में भी काम नहीं करता। परमेश्वर ने बोला, जो कुछ तेरे को है दूसरे को दे, फिर मैं तेरे को दूंगा। जो भी आदमी अपने पास वचन को रखता है, परमेश्वर उसे वचन नहीं देता। जो वचन को बांटता है, दूसरे लोगों को वचन सुनाता है, सिखाता है, परमेश्वर उससे और भी डबल देता है। वो देने वाले को देता है। तो जो रखेगा अपने पास, जमा करेगा, उसे नहीं देता। हालेलुया। इसलिए बोला परमेश्वर ने, जितनी देर कनक का दाना मरेगा नहीं, वो फल नहीं दे सकता। हमें परमेश्वर में मरना है। परमेश्वर में क्या करना है? मरना है। कैसे? बपतिस्मा, जो इंसान बपतिस्मा लेते हैं वही पाप करी जा रहे, मर जाते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो बपतिस्मा लेके भी नशे कर रहे हैं, बदमस्तियां कर रहे हैं, तौबा करके भी। कितने लोग हैं? प्रभु में मरना,
मरना कैसे? अपनी इच्छाओं को मारना, जो इंसान की ख्वाहिशें होती हैं उसे मारना। जैसे इंसान के माइंड में गलत गलत जो विचार आते हैं उसे मारना, उसे खत्म करना। जो ख्वाहिशें उठती हैं, एक अच्छी गाड़ी मेरे पास हो, अच्छा घर मेरे पास हो, ऐसी ख्वाहिशों को मारना। प्रभु इंसान की ख्वाहिशें पूरी करता है? करता है? नहीं। कितने सामने करते हैं? परमेश्वर कभी भी किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं करता। प्रभु कभी भी किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं करता, वो जरूरत पूरी करता है। उसे मालूम है मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कौन सी जरूरत है। जैसे रमेश भाई ने गवाही दी, इनके जो परिवार है हॉस्पिटल में खाने का इंतजाम नहीं। परमेश्वर ने क्या देखा? इनकी जरूरत को पूरा क्या वो ख्वाहिश थी? जरूरत थी। परमेश्वर ख्वाहिशों को नहीं, जरूरतों को पूरी करता है। ख्वाहिशें किनकी होती हैं? वो शैतान मन में डालता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी शादी कोई अच्छी लड़की से हो जो बहुत खूबसूरत हो। ये क्या है? ख्वाहिश है। परमेश्वर ख्वाहिशें नहीं, जरूरतें पूरी करता है। हम सीख रहे हैं परमेश्वर में मरना। ये मरेंगे तो फल लेके, ये मरेंगे तो फल लेके आएंगे। जितनी देर हम मरते नहीं, कभी भी फल लेके नहीं आएंगे। मरना कैसे? हालेलुया। सोना नहीं, मरना कैसे? अपनी ख्वाहिशों को मारना। और आप किसी से नफरत करते हैं, उसे खत्म करना अपने जीवन से। आप ज्यादा बोलते हैं, अपनी जबान को कंट्रोल करना। आपके मन में गलत विचार आते हैं, उसे खत्म करना। आपकी किसी से दुश्मनी है, उसे खत्म करना। आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उसे खत्म करना। ये हमारे जीवन में ये बातें होनी नहीं चाहिए। अपने भाई बहन से प्यार करना, अपने माता पिता का आदर करना, और अपनी पत्नी से अपने जहां प्यार करना, अपने बच्चों से प्यार करना, और अपने गवांडी से भी क्या करना? प्यार करना। आपके गवांडी के पास कुछ खाने को नहीं है, आप उसे खाने को दो। आप उसे खाने को दोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। ये बातें हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। क्यों असी अपने आप को खत्म करना? ये नहीं कि मामले धरती तो जल जाना, नहीं। साडे मन के विचार, साडे हिरदे विच जो गलत गल्लां होंदियां वा, असी उन्हां नूं की करना वा? खत्म करना वा। तां परमेश्वर ने बोला, जितनी देर कनक का दाना मरेगा नहीं, वो फल लेके। वचन पढ़ा, मैं तुझे सच सच, सच कितनी बार है? 2 बार। ये बात क्या है? पक्की है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल अटल है।
प्रभु ने बोला, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जो इंसान जल और आत्मा से पैदा ना होगा वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। परमेश्वर के हुक्म को मानना बहुत जरूरी है, उसकी मर्जी के मुताबिक चलना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर के लोगों की इज्जत करनी, परमेश्वर के खात्मों की इज्जत करनी, और अपने गांव में, अपने शहर में, जिधर भी तुम रहते हो, आपको समय मिले एक दूसरे के घर में जाओ और परमेश्वर का वचन दूसरे लोगों को बताओ। आपके वसीले एक जान भी बच गई, स्वर्गीय पिता आपको बरकत देगा, और स्वर्ग में बहुत सारे जो फरिश्ते हैं खुशी मनाते हैं एक इंसान, एक रूह बचने के लिए। एक भी रूह बचेगी, परमेश्वर के फरिश्ते खुशी मनाएंगे, वो स्वर्ग में खुशी मनाते हैं। आप पृथ्वी में रहकर आप किसी को वचन बताते हो, अगर वो इंसान वचन को मान लेता है, वचन के मुताबिक चलता है, फिर परमेश्वर आपको बरकत देगा और प्रभु के स्वर्गीय दूत खुशी मनाएंगे। लूका 15 बाब घर जाके पढ़ लेने का, उसमें लिखा हुआ है, एक इंसान बचने जो बचता है ना, तो परमेश्वर के स्वर्गीय दूत खुशी मनाते हैं। एक इंसान बचता है, और कोशिश करो, ये परमेश्वर ने मुझे बचाया और मैं भी किसी को बचाऊंगा। परमेश्वर के राज में काम करो, परमेश्वर के राज्य में काम करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या देगा? बरकत देगा, आपको और भी वचन का गहरा ज्ञान देगा। परमेश्वर चाहता है कोई भी जान, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। असी की करना वा, की करना कुछ ही बोलो, अही की करना वा, किनू मारना? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ करना। परमेश्वर क्या है? एक प्रेम है। आप जब भी बोलो, आपकी जबान से कोई भी लफ्ज निकले, वो क्या निकले? प्रेम के लिए, दूसरे सुनने वाले को अच्छा लगे, भाई ये परमेश्वर का जन है। जी आप गलत बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे? इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता, नहीं करता। क्यों? इंसान कपड़े पहने होंगे पहचाना नहीं जाएगा, जब उसके काम देखते हैं, उसका उठना बैठना और बोलना चलना देखते हैं, फिर पता लगता है इसमें परमेश्वर का आत्मा काम करता या शैतान का आत्मा काम करता। पहचान बाइबल में लिखा हो, जो कि भाई बाइबल में लिखा हुआ है, जब भी तुम अपनी मुंह से कोई भी लफ्ज निकालें वो परमेश्वर की उन्नति के लिए हो, और जो सुनने वाले हैं उसे अच्छा लगे। कोई भी गलत लफ्ज आपके मुंह से मत निकले, गलत लफ्ज आपके मुंह से कभी ना निकले, वही लफ्ज निकले जो सभी को अच्छा लगे। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर एक प्रेम है,
वो प्रेम हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। फिर आदमी की पहचान होगी, ए परमेश्वर का जन है, ए परमेश्वर का खात्मा है, ए परमेश्वर के लोग हैं। कि आपकी लैंग्वेज गलत होगी फिर वो परमेश्वर का नहीं बोलेंगे। क्यों? परमेश्वर एक प्रेम है। उसने तो पूरे जगत के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। पूरे जगत के लिए क्या दे दी? कुर्बानी दे दी। तो ये हमें प्रभु अभी लहू की कुर्बानी नहीं मांगता। प्रभु लहू की कुर्बानी मांगता? प्रभु लहू की कुर्बानी नहीं मांगता। वो क्या मांगता है? तुझसे समा मांगता है। परमेश्वर तुझसे समा मांगता है। जो भी समा तुम परमेश्वर की हजूरी में गुजारते हो, प्रभु आपको उस समय के जो गुजारा हुआ परमेश्वर में उसकी क्या देगा? बरकत देता है। और जो समा हम कहीं मार्केट में चले जाएं और काम में गुजार देते हैं उसका कोई लाभ नहीं। तो जो समा परमेश्वर की हजूरी में प्रभु के साथ आपने भी पाया है, उस समय की आपको आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी उस समय की। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5ਵਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ 6 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। 6 ਤੇ 7 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਮਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਖਮੀਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है आपका अभिमान अच्छा नहीं कि तुम नहीं जानते जो थोड़ी सी आपके जीवन में गलती है आपके जीवन को नाश कर देती है। जो छोटियां छोटियां गलतियां होती हैं वो आपको नाश कर देती है। जैसे बोलते भाई ये तो छोटी सी गलती है, मैंने कोई बड़ी गलती थोड़ी की है। क्या की है? छोटी गलती। समझ आ रही भाई क्या बोला मैंने? गलती लोग बोलते हैं हमने गलती कर दी, लेकिन वो बोलते हैं ये छोटी बड़ी है। हाँ, आपसे ही पूछिए। हालेलुया। इंसान बड़ी गलती को मानता है, छोटी गलती को नहीं मानता। ये तो छोटी गलती है। गलती तो भाई गलती है, छोटी हो चाहे। सरिष्ठ गीत में लिखा हुआ है, वो 3 की 15 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है छोटियों छोटियां लोमड़ियों को पकड़े, ये पूरे अंगूरी बाग को क्या कर देती हैं? खराब कर देती हैं। छोटियां छोटियां गलतियां। अंगूरी बाग कौन सा है? अंगूरी बाग हमारा हृदय है। और छोटियां छोटियां गलतियां जो हमारे जीवन में है, हमारे जीवन को खत्म कर देंगी। परमेश्वर चाहता है ये जो आपके जीवन में छोटी छोटी गलतियां ये भी निकालो, आप एकदम पवित्र बनो। परमेश्वर बोलता है जैसे मैं पवित्र हूं आप भी पवित्र बनो। बाइबल में अभी पढ़ा, जो थोड़ा सा खमीर पूरी तौन को क्या कर देगा? खराब कर देगा। छोटी सी गलती पूरी लाइफ को खराब कर देगी, आपके जीवन को खराब कर देगी। आज ये आगे पढ़े। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर, आपका जो पुराना जीवन है, जो आप
प्रभु को पहनने से पहले आपने जो समा बिताया, पाप में समा बिताया, और जो भी आपके अंदर छोटियां छोटियां गलतियां रह गई हैं, छोटियां छोटियां गलतियां आपके हृदय में है, उसे निकालो। उसे क्या करो? निकाल दो। परमेश्वर चाहता है आप शुद्ध बनो, एक पवित्र बनो। आप परमेश्वर के सिंहासन के आगे कैसे खड़े होंगे कि आपके अंदर छोटियां छोटियां गलतियां हो गई, कभी भी आप परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। क्यों? परमेश्वर एक आग है। परमेश्वर का जलाल इतना जलाल है, जब मूसा वो चट्टान पे गया और परमेश्वर का जलाल उसके चेहरे में आया, और इस्राएल के लोग उस चेहरे को देख नहीं पाते, इतना जलाल। मूसा को बोले अपने मुंह को क्या कर ले, कवर कर ले, हम देख नहीं सकते, इतना जलाल। आप ये बात अपने हृदय में रखो, एक दिन मैंने परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना। हमें अपनी छोटी छोटी गलती पे ध्यान देने का बहुत ही ज़रूरत है हमें, कि कोई भी कमी, जी मैं गलत बोलता हूँ, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करूँ, मैं गलत सुनता हूँ, अपने कानों पे कंट्रोल करूँ। बाइबल में लिखा हुआ है, जब इसकी बारात को पढ़ते हैं, 11 को पढ़े हैं इससे। हाँ जी, 5 दिन। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी जा, लोभी जा, मूर्ति पूजक जा, गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। हालेलुया। परमेश्वर ने मना किया, किन लोगों की संगत नहीं करनी। क्यों जो दे केड़िया लोगों की संगत नहीं करनी। हालेलुया। हमने कौन से लोगों की संगत नहीं करनी? पीछे पूछे जो बुरे लोगों दी। हाँ जी, बुरे लोगों दी। बुरे बुरे ने बाइबल तेरी कहती है, पढ़ फिर बुरे ने कहना बुरे कहना। यदि यहाँ ऊंची आवाज ना पर ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਘੜਾ ਸਦਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਾਟ ਜਾਂ ਗੋਪੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਥਵਾ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ। आगे। ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ नहीं खानी। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जो ऐसे लोग हैं उनके साथ खाना भी मत खाओ। परमेश्वर तो खाने के लिए भी मना बोल रहे हैं। कौन से लोग? जो हरामकार हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जो परमेश्वर से दूर है, जो गाली निकालते हैं, दारू पीते हैं, उनकी संगत मत करो। क्या मैंने अपने आपसे बोला? अच्छा, अपने मुंह से बोला? वचन से। किधर लिखा हुआ है? वचन में। प्रतापा जी, परमेश्वर की कहता हुआ भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ नहीं खाना। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ।
हाँ सभी विचार करने वाले शराबी ने लुटेरे ने उन्होंने संगत नहीं की ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ नहीं खानी। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है। हम भी क्या हैं? पवित्र हैं। हम हर रोज ही प्रेयर में बैठते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं। उनकी संगत भी मत करो। क्यों? हम ये उनकी संगत करेंगे तो कभी फल लेके नहीं आएंगे। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? फल चाहता है। इसलिए वो बोलते हैं कि आपके जीवन में ये छोटी भी गलती है उसे निकालो, छोटी गलती उसे निकालो। जीवत परमेश्वर की महिमा करो, जीवत परमेश्वर को अपना दुख बताओ। और परमेश्वर वो सब कुछ जानता है, हमें कौन सी चीज़ की क्या है ज़रूरत है। वो इंसान की ख्वाहिशें नहीं, ज़रूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। परमेश्वर चाहता है हर एक जान बचाई जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हुण असीं की करना वा परमेश्वर दे विच? बोलो फिर सारे, फिर की करना वा? अपने ख्वाहिशां अपनियां मारना। और बुरे लोगों की संगत नहीं करनी, मूर्ति पूजकां दी, हराम करां दी, जुनाहकारां दी। हाँ जी, होर कोई होर ही बोलो, होर ही बड़ा कुछ बोलिया दसो। हाँ जी, फल लियाउणा नहीं, फल ते असीं तां ही लियावांगे जे पहिलां उन्हां नूं की करांगे? गलतियां कटांगे। ਅੱਜ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਲਾ ਆਪਾਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਆਪਾਂ? कोई छोटी तो छोटी गलती भी नहीं करनी, बुरे लोगों की संगत नहीं करनी। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ये धन्यवाद है परमेश्वर का। कहता कली एक एक बात का न्याय किया जाएगा, एक एक काम का जो आपने इस पृथ्वी में किया है। आपके कामों के अनुसार आपका न्याय होगा। आपके जो काम अच्छी हुए फिर अच्छा फल मिलेगा। जी आपके काम बुरे हो, ये आपके काम बुरे होंगे तो फिर कौन सा फल मिलेगा? उधर मेरा रोना है, आग में जलना। इस जिस्म में रह के हम अपनी गलती की माफ़ी मांग सकते हैं। जब ये जिस्म छोड़ दिया, आत्मा चला गया परमेश्वर के पास, फिर आप कभी भी गलती की माफ़ी मांग नहीं सकते। आज इंसान के पास समय है, कोई भी इंसान आज अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा, वो बचाया जाएगा। क्यों? परमेश्वर हमसे फल चाहता है और हमने फल लेके आना है। प्रभु तुहानू सारे नूं इस वचन नाल ब्लेस करें। तो वचन और प्रभु तुहानू सारे नूं आशीष बख्शे, सारे विद्यार्थी और सब जन अपनी अखबार बंद करांगे, सारे जो गावांगे आज दे वचनों आपकी पोस्ट भी मिल के दुआ करें।